Hello everyone, welcome to my channel. So today I'll start with the pacemaker. Now what is pacemaker? The impulse or command which starts the heartbeat arises in pacemaker. जो impulse start होते हैं which helps in pumping the blood, so that is impulse arises from the SA node. Where is SA node? This is SA node and it is present in the right auricle. Located in the walls of right auricle, this impulse is relayed to the ventricles with the help of special conducting fibers. ये जो ऐसे नोड हैं जो इम्पल्स क्रिएट करते हैं, ये स्पेशल टाइप के टिश्यूज से बने हैं एंड दैट टिश्यू इज कॉल्ड नोडल टिश्यू, मेड अप ऑफ नोडल टिश्यू, and it is distributed in the heart. It will be distributed in the heart में distributed है. And this patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium. यहाँ पे इस जगह पर present है. And this is called SA node, sinoatrial node. एक और टिश्यूज़ हमें दिखता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दिस इज़ प्रेजेंट इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. इस जगह पे ये जो प्रेजेंट है एंड दिस इज़ कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AVN. वेयर इट इज़ प्रेजेंट, ये किसके पास प्रेजेंट होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास. Can you see this is atrioventricular septum? ये क्या है? Atrioventricular septum. Septum क्या होता है? This is a wall which is dividing atrium और ventricles को, जो walls divide अलग करती है उसे बोलते हैं septum. और ये जो बंडल है नोडल फाइबर की, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ये कंटिन्यूज होती है फ्रॉम द AVN विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. यहाँ पे ये यहाँ से जो नोड्स एंड इट विल बी डिवाइडिंग दिस. ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इमीडिएटली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ द नोडल फाइबर. इसे क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस. ये जो बंडल ऑफ हिस है, यू कैन सी, ये दिस यू कैन सी इज कमिंग, दिस इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस. ये कहाँ से बिगिन होती है? AVN से. दिस इज AVN and it is begins from here and extend to the interventricular septum. और ये यहाँ से. And this bundle of His consists of branches of fibers running along the walls of the ventricles. And this is called Purkinje fiber. And this is called Purkinje फाइबर. और ये सारा मिल के, ये जितने ऐसे नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड बंडल ऑफ हिस, all this together form a system which create an impulse and conduct it to every part of the heart. A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart. Sinoatrial node is present in the right upper corner of the right atrium. SA node कहाँ पे present है? This is SA node. It is present in the
upper corner of the right atrium. AVN, atrioventricular node, is present in the lower left corner of the right atrium. Where it is present? Lower left corner of the right atrium. Lower left corner of the right atrium. Bundle of His begins from the AVN. बंडल ऑफ हिस कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बिगिंस, शुरू होता है एवियन एंड एक्सटेंड टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. दिस इज बंडल ऑफ हिस. और ये फिर जाएंगे फिर वेंट्रिकल्स में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. Now bundle of His consists of branches of fibers running along the walls of the ventricle called Purkinje फाइबर. ये जो देख रहे हो वेंट्रिकुलर सेप्टम में, यही हो जाएंगे पुरकिंजे फाइबर. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ब्लड वेसल्स. नाउ व्हाट इज ब्लड वेसल्स? सी, द ब्लड वेसल्स आर branched tube extending from heart to all parts of the body. They are of the three kinds. कितने काइंड्स के होंगे ब्लड वेसल्स? थ्री काइंड्स के होंगे. दैट इज आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, थ्रू विच द ब्लड्स विल बी सप्लाइड to the heart, and from the heart it will be carried to all parts of the body. So the oxygenated blood will be carried by the arteries. This artery will carry oxygenated blood, and this veins will carry deoxygenated blood. Deoxygenated blood to from the all parts of the body. It will be carried by the veins to the heart, and arteries will carry oxygenated blood from heart to all parts of the body. So what is an artery? An artery is a vessel which carries blood away from heart towards any organ. So in the diagram we can see this. This is an artery which carries oxygenated blood away from the heart towards any organ. What is the characteristics of artery? It is thick muscular wall. So the wall will be thick. इसकी जो walls होगी arteries की, वो कैसी होगी? You can see this wall will be thick. A narrow lumen. It will have narrow lumen. You can see, इसे बोलते हैं lumen. ये क्या होगी? पतली होगी. There will be a space जो ये दिख रहा है, ये this will be a lumen. ये क्या होगी? Narrow होगी. So which can helps in maintaining the pressure of the blood. The blood in it flow in spurts, means it will carry oxygenated blood which will be pumped out of the heart with force. ये blood क्या करेगा? force के साथ exert करेगा, so that the blood will reach to all parts of the body. It will be powerful flow. Next, what is vein? Vein क्या है? A vein is a vessel which carries the blood away from an organ towards the heart. So this vein will be carrying the blood away from the organs, and it will be carried to the heart. हर एक organ से blood को लेगा and it will be taken to the heart के पास लेकर जाएगा. Veins. So what will be the characteristics of vein? Thin muscular wall. इसकी जो wall है, you can see in the diagram, इसकी जो wall है वो कैसी है? Thin है. You can see this is the wall of vein, and ये इन दोनों में it will be thick wall and it is thin wall. And a wide lumen. You can see there will be a wide lumen of
वेन्स की ल्यूमेन क्या होगी, वाइड होगी, और आर्टरीज की नैरो होगी. द ब्लड इन इट फ्लो यूनिफॉर्मली. ब्लड का फ्लो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा. सी द ब्लड फ्लो विल हैव अ स्ट्रिक्टली बाय द फिक्स रूट. एक फिक्स रूट ही होता है जिससे ब्लड का फ्लो हो. दैट इज़ अ ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. So the next is capillary is very narrow tube about 8 micrometer in the diameter. So उसका जो diameter होगा it is very thin, hair like, hair से भी पतला होगा capillaries, and it will be capillaries क्या करेंगे, blood को flow करेंगे. blood कहाँ, cells तक जहाँ पे पहुँचा सके वहाँ तक लेकर जाएंगे. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. इट्स वॉल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स. इसकी जो लेयर है कैपिलरीज की वो किससे बनी होती है, सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल से बनी होती है. एंड हैज़ नो मसल्स. इसमें मसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे कैपिलरीज में. जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, each arteries and veins consist of 3 layers. You can see हर एक arteries और veins जो होती हैं उनकी कितनी layers होती हैं, 3 layers होती है. You can see there are 3 layers, 1 layer, 2 and 3 layers will be present in both arteries and veins. यहाँ पे भी 3 layers present हैं. An inner lining of squamous epithelium. इनर जो लेयर होती है, इनर लेयर वो किसकी बनी होती है, स्क्वामस एंडोथेलियम. इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटिमा. इसे क्या बोलेंगे, ट्यूनिका इंटरना. ट्यूनिका इंटरना बोलेंगे या ट्यूनिका इंटिमा. इंटरनल जो लेयर है उसे बोलेंगे ट्यूनिका इंटरना. मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स. ये जो मिडिल लेयर है ये किसका बना होगा, स्मूथ मसल्स का. स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स के बने होंगे. द ट्यूनिका मीडिया. इसे क्या बोलेंगे, ट्यूनिका मीडिया. दिस विल बी कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया. एंड द थर्ड वन, एक्सटर्नल लेयर इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. जो एक्सटर्नल लेयर है वो किसका बना होगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. इंटरनल लेयर किसका बना हुआ है, एंड इट इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटरना. और ये बना हुआ है स्क्वामस एंडोथेलियम का. एंड जो मिडिल लेयर है उसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिकल मीडिया. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर. एंड इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ है. एंड द ट्यूनिका मीडिया एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलाजन फाइबर. जो एक्सटर्नल हैं वो बने हुए हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना. द ट्यूनिका मीडिया इज़ कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स. ये कैसा होगा, थिन होगा किसमें, वेन्स में ये थिन होगा. ट्यूनिका मीडिया क्या होगा, इट विल बी थिन एज कंपेयर टू आर्टरीज. आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स की जो लेयर है वो 3 लेयर्स होते हैं. एंड इनर लाइनिंग, ये जो देख रहे हो ये क्या है, इनर लाइनिंग है. ये इनर लाइनिंग है और ये इनर लाइनिंग बनी होती है स्क्वामस एंडोथेलियम की. और इसे बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना. ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना और इंटिमा. सेकेंड लेयर जो मिडिल लेयर है, this is middle layer, and this middle layer
is made up of smooth muscle and elastic fiber. इसे बोलते हैं tunica media. एंड एक्सटर्नल लेयर, ये जो है एक्सटर्नल लेयर, ये बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की विथ कोलाजन फाइबर, दैट इसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना. और ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगी वेन्स एंड आर्टरीज दोनों में. बट इन आर्टरीज इन वेन ट्यूनिका मीडिया जो है, जो मिडिल लेयर है, दिस मिडिल लेयर विल बी थिनर इन वेन्स. वेन्स में जो ये मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया विल बी थिन. नाउ वी विल सी व्हाट इज pulmonary circulation. What is pulmonary circulation? See, the deoxygenated blood will pump into the pulmonary artery. ये क्या करेगी? पंप करेगी pulmonary artery में, and from pulmonary artery it is passed on to the lungs. ये कहाँ जाएगी? It will go to the lungs, and from where the oxygenated blood is carried. अब यहाँ से क्या होगा? oxygenated blood will be carried by the pulmonary vein into the left atrium. This pathway constitutes the pulmonary circulation. इसे बोलेंगे pulmonary circulation. What is pulmonary circulation? मैंने क्या बताया कि deoxygenated blood, see, superior vena cava और inferior vena cava से blood flow के कहाँ पे आया? Atrium में, right atrium में आया. And from the right atrium, this is deoxygenated blood. It will move to the ventricle, right ventricle, and from the right ventricle this blood will be moving. This is what? This is pulmonary artery. Pulmonary artery मैंने क्या बताया? Pulmonary circulation, deoxygenated blood कहाँ जाएगा? Pulmonary artery से. This is pulmonary artery, और यहाँ pulmonary artery से the blood will be move to the lungs. यहाँ से कहाँ जाएगा? lungs की ओर जाएगा, and from there oxygenated blood. So it will take oxygenated blood and pulmonary vein से वो कहाँ पर आएगा? It will pulmonary vein से the blood will come into the left atrium की ओर आएगा. This is called pulmonary circulation. Next is, now what is systemic circulation? Systemic circulation. What will be systematic circulation? The oxygenated blood. Now यहाँ पे क्या हुआ? Left atrium से the oxygenated blood will move to the left ventricle, and from left ventricles through aorta the blood will be pumped to all parts of the body. तो oxygenated blood कहाँ से enter करेगा? aorta से it will be carried to arteries. From aorta the blood will be carried by a network of arteries. Arteries से arterioles, and capillaries to tissue, from where the deoxygenated blood is collected by a system of
venues, veins, and vena cava, and emptied it into the right atrium. इसे बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन. ओटा से क्या होगा, आर्टरीज, आर्ट्रियोस और कैपिलरीज के थ्रू द ब्लड विल बी रीच टू द टिश्यूज़. हर एक टिश्यू सेल्स तक पहुंचेगी ब्लड, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी ब्लड. और ये कौन कलेक्ट करेगा, वेन्यूल्स कलेक्ट करेंगे, वेन्स और वेना कावा, और ये लेकर जाएंगे राइट एट्रियम में. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यू. ये क्या करेंगे, दिस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू टिश्यूज़. एंड फ्रॉम टिश्यूज़, ये टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेकर एलिमिनेट करेगा. इट विल बी एलिमिनेटिंग द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द टिश्यूज़. एक अलग कनेक्शन होता है वैस्कुलर टिश्यूज़ का फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर में. इसे बोलेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. ये एग्जिस्ट करेगा बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर. ये जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, ये किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिवर में. ये हिपैटिक पोर्टल वेन्स क्या करेंगे, ब्लड को कैरी करेंगे इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज़ डिलीवर टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. ये पहले वेन्स जो है ब्लड को कैरी करेगी इंटेस्टाइन से लेके लिवर, पहले ये लिवर को देगी, देन इट विल बी डिलीवर टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. दिस हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करेगी, पहले ब्लड को इंटेस्टाइन से, फ्रॉम इंटेस्टाइन इट विल टेक टू द लिवर, पहले लिवर के पास लेकर जाएगी, देन इट विल बी डिलीवर टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. एक और प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड. ये क्या करेगी, व्हाट इट विल डू, ये प्रेजेंट होती है बॉडी में. कहाँ पे इसका सर्कुलेशन होगा ब्लड का, फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर. मतलब ब्लड हार्ट की जो मसल्स में जो प्रेजेंट होते हैं वेसल्स, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है. इट विल बी कॉल्ड कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड. इट इज़ प्रेजेंट फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड to and from cardiac musculature. Now we will study about regulation of cardiac activity. ये जो cardiac activity है वो कैसे रेगुलेट होगी हार्ट में. जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है हार्ट की, जो इंटरनली, इट विल बी ऑटो रेगुलेटेड. ये कैसे ऑटो रेगुलेटेड होती है, आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट नोडल टिश्यूज़. जो नोडल टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, नोडल टिश्यूज़ दैट SAN और AVN जो प्रेजेंट होती हैं, विच क्रिएट एन इम्पल्स. जो AVN SAN ये जो प्रेजेंट होते हैं, इट विल बी रेगुलेटेड बाय द नोडल टिश्यू, और यही इम्पल्स क्रिएट करते हैं. सो इसे बोलते हैं हार्ट. हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक. A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function that autonomic nervous system. जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट है, that is medulla oblongata, we have studied about brain. ब्रेन में जो पार्ट्स होती हैं at the back, वहाँ medulla oblongata न्यूरल सेंटर कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन. ये कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करेगी. कार्डियक
फंक्शन को रेगुलेट करेगी मेडुला ऑब्लांगाटा थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। किससे होगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। A neural signals through the sympathetic nerve can increase the rate of the heartbeat. So yeah, this all I will explain in the brain के chapter में I will explain how this all helps in regulation of cardiac function. इसमें दो तरीके के होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस होते हैं जो कि ब्लड रेट को इंक्रीज करेगा, एंड एक होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, वो क्या करेंगे? इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। ये जो एक और होता है एड्रिनल ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन द मेडुलरी हॉर्मोन्स, ये क्या करेंगे? इट ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक इनपुट। सो ऑल दिस आर helps in the regulation of cardiac activity. Now next we will study about ECG. Now what is ECG? Electrocardiograph. So we'll start with the ECG. Now what is ECG? Electrocardiogram is a graphical representation. क्या है? एक graphical representation है. You have seen कैसा होता है graphical representation. ऐसा आपने देखा होगा. This is a graphical representation. कैसा होता है? यहाँ P Q R S T. This graphical representation of the electrical activity of the heart during cardiac cycle. ये आपने देखा होगा this kind of representation. This is called ECG. ये ऐसा ग्राफ कब बनता है? जब किसी के हार्ट को हम लोग मॉनिटर करते हैं तो ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टू शो योर कार्डियक साइकिल. To obtain ECG, a patient is connected to machine. एक मशीन से कनेक्ट किया जाता है. There will be a 3 electrical leads. ये 3 electrical leads लगाए जाते हैं, 1 in to each wrist, दोनों हाथ के wrist पे, और एक left ankle में लगाया जाता है to monitor the electrical graphical representation of your heart during cardiac cycle. So what is this P? P क्या है? QRS. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? What does it represent? और हम ये मॉनिटर कैसे करेंगे? एक मशीन से. तो ये मशीन हमें क्या शो करती है? ये P क्या है? Q और S T क्या रिप्रेजेंट करती है? See, each peak of ECG is identified with a letter P to T. हर एक पीक हमें P से लेके T तक क्या एक्टिविटी होती है हमारे हार्ट की विल रिप्रेजेंट विथ इट. नाउ व्हाट इज P वेव? हियर यू कैन सी P वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक शो करेगी. तो ये क्या बताता है P वेव? इट इज़ अ स्मॉल अपवर्ड. ये स्मॉल अपवर्ड वेव है दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया. हमने हार्ट का पढ़ा है कि जो एट्रिया होती है वो उनका एक्साइटेशन मीन्स इम्पल्स विल बी गिवन व्हेन इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट. जब वो डीपोलराइज, जब वो एक्साइटेड होते हैं विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया. जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगी, डीपोलराइजेशन उनका शो करेगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पी वेव शो करता है कि उनका कॉन्ट्रैक्शन. पी वेव क्या शो करेगा? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा. नाउ व्हाट इज दोनों बोथ एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन शो करता है. कौन? पी वेव. नाउ नेक्स्ट व्हाट इज क्यू आर एस? यू कैन सी ये जो क्यू आर एस वेव है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? एक्साइटेशन. इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन शो करेगा किसका? वेंट्रिकल्स का, विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन.
वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये क्या शो करेगा? QRS विल शो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। पहले P वेव ने क्या शो किया? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। नाउ QRS विल शो द कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट। पहले क्या होगा? Q क्या करेगा? इनिशिएट करेगा कॉन्ट्रैक्शन। उस समय कॉन्ट्रैक्शन हुआ नहीं है। Q से स्टार्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स का। इट विल शो दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। Q से इनिशिएट होगा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस होल विल रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर Q। Q से स्टार्ट होगा, मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल। Q से हमें क्या पता चलेगा कि Q जब रिप्रेजेंट कर रहा है मीन्स व्हाट, यहाँ से इट विल इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। नाउ व्हाट द T वेव विल शो? represents the return of the ventricles from excited depolarized to normal state. Now what T will show? कि ये T क्या शो करेगा कि अब ये डीपोलराइज्ड हो रहे हैं, डीपोलराइज से नॉर्मल। डीपोलराइज मीन्स एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल। नॉर्मल स्टेट में जब आ रहे हैं दिस T will represent that. Represents the return of the ventricles from excited to normal state, that is repolarization. Depolarization का मतलब क्या हुआ? Excited state and repolarizes means normal state. The end of the T wave marks the end of the systole. ये represent T wave क्या represent करेगा? This T wave will represent mark of the ये systole जो है end हो रहा है systole का. It will represent the end of the systole. Systole means what? Contraction. Thus, by counting the number of QRS complexes that occurs in a given time period, the heartbeat rate of an individual can be determined. ये QRS से हमें पता चलेगा कि हार्ट बीट जो है हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं. So the T wave represents the return of the ventricles from excited to normal state, repolarization, and the end of the T wave marks the end of the systole. By counting the number of QRS complexes that occurs in the given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. The ECGs obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration. Any deviation from this shape indicates a possible abnormalities or disease. अगर इसमें से अगर कुछ भी डेविएट या PQ ये अगर ज़्यादा है कर्व या PQRS ज़्यादा है या द वेव विल बी शॉर्टर और लॉन्गर, इट शोज़ कि देयर विल बी एबनॉर्मलिटीज़ इन द हार्ट में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ या कोई डिजीज़ है, यह रिप्रेजेंट करेगी ECG. अगर ये नॉर्मल है तो देयर विल बी, अगर एबनॉर्मल कर्व आपको दिख रही है इसमें P ज़्यादा है या QRS शॉर्टर है या लॉन्गर है मोर देन दिस, इट विल शो दैट देयर विल बी एनी काइंड ऑफ डिजीज़ और एबनॉर्मलिटीज़ विल बी इन द हार्ट. High blood pressure, hypertension. In the turn of blood pressure, we know that normal blood की pressure क्या है? There will be 120/80. 120 mmHg millimeter of mercury pressure. ये क्या है? Systolic. और pumping pressure 80 mmHg is the diastolic और resting pressure. 80 mmHg क्या है? Diastolic प्रेशर है और रेस्टिंग प्रेशर है. ये सिस्टोलिक प्रेशर एंड दिस इज डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर. अगर ब्लड प्रेशर किसी इंडिविजुअल का 140 या 90 है और मोर देन दैट, इट शोज़ हाइपरटेंशन. अगर इससे ज़्यादा है, इतना है या इससे ज़्यादा है तो इट विल शो हाइपर टेंशन. मीन्स क्या है? हाई ब्लड प्रेशर. हाइपर मीन्स हाई.
ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से इट विल लीड टू द हार्ट डिजीज। और ये हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से हार्ट डिजीज़ होगी, एंड इट विल ऑल्सो affect the vital organs like brain and kidney. It will also affect vital organs like brain and kidney. Now coronary artery disease. Coronary artery disease क्या है? ये वेसल्स को अफेक्ट करती है जो कि ब्लड का सप्लाई करती है। ये क्या करेगी? अफेक्ट्स द वेसल्स जो कि ब्लड को सप्लाई करती है हार्ट में, हार्ट के मसल्स में। विच वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वेसल्स, उसे अफेक्ट करता है बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द वेसल्स। फैट का डिपोजिशन हो सकता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल। जो वेसल्स हैं, इन वेसल्स के अंदर क्या होगा? देयर विल बी अ डिपोजिशन, एक डिपॉजिट होगी किसकी? या तो कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, या फैट का डिपोजिशन होगा, या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा। इनका डिपोजिशन होने की वजह से क्या होगी? ये नैरो हो जाएगी, एंड जो ब्लड का सप्लाई है विल अफेक्ट दैट। जो ल्यूमेन हो जाएगी, ल्यूमेन क्या हो जाएगी? और नैरो हो जाएगी। ल्यूमेन विल बी नैरो, मेक्स lumen of arteries narrow. ल्यूमेन क्या है? वो जो आर्टरीज की जो बीच में जिससे ब्लड सप्लाई होती है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ल्यूमेन। डिपोजिशन होने की वजह से और वो पतला हो जाएगा स्पेस, सो इट विल अफेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड। So that's all. We have completed the chapter blood circulation. Thank you.